Hi everyone, welcome to Rodha, and let's start with the part 2 of PYQs. We were discussing last year MHCT questions from one of the slots. 11 questions we have done, right? And let's start with the another part. Now you will see some errors in these type of questions, right? So obviously MHCT में थोड़ी बहुत errors होती हैं, right? So we'll look forward that how to tackle those errors, है ना? And if you can identify right the error and you have time to do the right thing, I mean you can identify and you can correct it, then you should go about it. Otherwise you need to leave it, right? Leave that question. Okay, so that's the main thing. That's one of the agenda of this particular video, that how to tackle with errors, right? And how to identify that. All right, so like this question itself has an error. Let's talk about that, right? First of all, let's see what the question is saying. Simple input output question. You have the basic data about them, right? You can read the directions. So basically an input will be given to you and some steps will be there. All right, and you need to identify one more input, and then the question will ask what is the step 3, step 2, or step 3 is given then input batao, so something like that. बेसिक फंडामेंटल, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वी विल डिस्कसिंग कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो. सो what are the varieties you can look in input output questions? It might be possible that it's the input is purely on numbers, it could be purely on words, alphabets, and it could be the mix of that is, for example, this is one of the cases, right? If it is a number based input output, for example, so two three main things are there. First is that it can operate some mathematical operations, like from input, in step 1 square of the input, in step 2 double of the step 1, in step 3 step 2 minus 1, है ना? Step 4 might be step 1 plus step 3, कुछ भी हो सकता है. So mathematical operations is one of the possibilities, right? Second is it can arrange the numbers in ascending or descending order, right? Or it can arrange the numbers according to ascending and descending order depending on the sum of the digits or the product of the digits. All right, and if it is a word based question, for example, so it can arrange them in alphabetical order according to dictionary, right? For example, the word starting with A will come first, and then let's say C, and then F, like that. It could be the reverse order of dictionary, like जैसे यहाँ पे आप देखो तो P then O then F then B, है ना? ऐसा कुछ चल रहा है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी है, राइट? इट कैन बी डिक्शनरी बट डिक्शनरी ऑर्डर बट विद द लास्ट अल्फ़ाबेट, मतलब स्टार्टिंग से नहीं अरेंज कर रहा है, लास्ट अल्फ़ाबेट से अरेंज कर रहा है. सी कि टी पहले आया, उसके बाद कुछ हो रहा है, उसके बाद कुछ हो रहा है, तो लुक फॉर दोज ऑल्सो, राइट? यहाँ पर ऐसा नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई एम जस्ट गिविंग पॉसिबिलिटीज़ क्या 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 हो सकता है. It could be the number of letters in the word also, like one letter word come first, then two letter, then three letter, then four letter. Possibilities are there, or the reverse order of that, right? These are the some common known input output pattern, right? Look for these. इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, वो तो depending on the question, but MHCT में anything can happen. All right, so and if it is a mix of word and numbers like this, so दोनों का mix हो जाएगा, है ना? दोनों लॉजिक्स का हम मिक्स कर सकते हैं. सो एक इसमें जो शॉर्टकट बनता है वो ये है, दैट लुक फॉर द लास्ट थिंग, दैट इज इट द लास्ट स्टेप और नॉट. फॉर एग्जाम्पल, इट इज गिवन टू यू दैट दिस इज द लास्ट स्टेप, तो सीरीज विल एंड हेयर. सो अगर ये दिया हुआ है तो दैट गारंटीज यू दैट इट इज अरेंजिंग देम आइदर इन द either of the logic which we have discussed, right? Dictionary, increasing, decreasing, whatever it is. If it is not given, that is the last step. So might be possible that it is simply rearranging the words or the digits बिना किसी लॉजिक के. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट टू को स्वैप कर दिया, फिर नेक्स्ट टू को स्वैप कर दिया, देन नेक्स्ट टू स्वैप कर दिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ. और माइट बी पॉसिबल फर्स्ट एंड थर्ड
देन फोर्थ एंड सेवेंथ, माइट बी पॉसिबल कि हाफ करके रिवर्स कर दिया, माइट बी पूरा रिवर्स कर दिया. सो दीज काइंड ऑफ थिंग, दिस इज द पोजिशन बेस्ड लॉजिक इन इनपुट आउटपुट, दैट कैन ऑल्सो हैपन. सो इफ इट इज गिवन टू यू, मतलब वो पोजिशन वाली तो नहीं कर रहा है, बिकॉज इफ इट इज पोजिशन वाइज अरेंजमेंट, इट गोज ऑन एंड ऑन, तो उसमें कुछ एंड नहीं होता है, देयर इज नो लास्ट स्टेप. ठीक है. सो एक शॉर्टकट ये बन जाता है कि अगर ये गिवन है तो मतलब वो लॉजिक तो नहीं चल रहा होगा, पोजीशन बेस्ड तो नहीं है क्वेश्चन. तो जो हमने डिस्कस किया उनमें से कुछ होने वाला है, मोर और लेस. एंड देन लुक एट द लास्ट स्टेप कि क्या हुआ यहाँ पर. अगर आप देखो तो यहाँ पर नंबर्स में इफ यू सी, सो 19, 25, 32, 47 इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना. एंड वर्ड्स में अगर आप देखो तो पास्ट, ओन, फेयर एंड बैक, सो रिवर्स ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी है. पी उसके पहले ओ आता है, उसके पहले एफ, देन बी. तो ये वो कर रहा होगा. इसमें और पॉसिबिलिटीज़ ये भी हैं कि माइट भी पॉसिबल कि वो वन बाय वन एक एक स्टेप में चल रहा है, कि पहले नंबर अरेंज किया, उसके बाद वर्ड अरेंज किया, फिर नंबर, फिर वर्ड एंड सो ऑन सो फोर्थ. माइट बी पॉसिबल एक ही स्टेप में वो नंबर एज वेल एज वर्ड दोनों को अरेंज कर रहा हो. दोनों पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे इसके अंदर. ठीक है. एंड देन विल लुक फॉर दिस, बट पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है. इस क्वेश्चन में एरर थी, क्या एरर थी वो भी डिस्कस करते हैं. दिस इज योर इनपुट, राइट. Now look at third and fourth step. 19 passed, 25 on, 32 back, 47 fear. 19 passed, 25 on, 32 back, 47 fear. सेम है ना. तो ये एरर है. तो यहाँ पर इसने स्टेप 3 में एक प्रॉब्लम की थी, विल डिस्कस की वो क्या हो रहा है. ठीक है. बट व्हाट इज हैपनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखते हैं. पहले इसने फर्स्ट ऑफ ऑल 19 इज पुट एट द फर्स्ट पार्ट, है ना. 19 यहाँ पर आ गया, बाकी पास्ट, बैक, 32, 47, ओन, फेयर, 25 अपनी पोजीशंस पे है. और पास्ट भी अपनी पोजीशन पर. ये भी हो सकता है कि वो एक साथ दोनों को अरेंज कर रहा हो सकता है कि माइट बी पॉसिबल दैट सिंपल नंबर अरेंज किया, उसके अगले पार्ट में उसने वर्ड को अरेंज किया होगा. ठीक है. तो अगर आगे वाले पैटर्न पे देखते हो, अगर यही पैटर्न यहाँ पे लगाते हैं आप, तो 19 पास्ट अपनी जगह पे है, लेकिन 25 यहाँ पर आ गया, है ना. मतलब इसने ये तो शायद नहीं किया होगा कि एक साथ दोनों अरेंज किए होंगे. ठीक है. क्वाइट पॉसिबिलिटीज, मैनी पॉसिबिलिटीज आते हैं, राइट. सो पहले वन बाय वन से चेक करते हैं कि 19 को उसने अपनी जगह उठाया, विच इज़ ओके. देन उसने क्या किया होगा कि वर्ड को अपनी पोजीशन पर लाया होगा. ठीक है. तो इस स्टेप में आने पे पास्ट शुड कम एट इट्स ओन प्लेस, बट पास्ट ऑलरेडी अपनी प्लेस पर है. तो ये भी एक पॉइंट बन जाता है कि इफ़ यू नीड टू अरेंज द वर्ड, बट वर्ड इज ऑलरेडी एट दैट पोजिशन विच इज सपोज टू बी, वो वहीं पर है जहाँ उसको होना चाहिए. इसका मतलब वी विल लुक फॉर अनदर पार्ट नाउ, फिर मैं वर्ड को अरेंज नहीं करूँगा, फिर मैं नंबर को ही वापस अरेंज करूँगा. तो अगर ये पैटर्न है कि पहले नंबर देन वर्ड देन नंबर देन वर्ड, पहले आपने नंबर को अरेंज किया, देन आपका पॉइंट होना चाहिए था वर्ड को अरेंज करना, बट वर्ड ऑलरेडी उस पोजीशन पे है, तो मैं वापस फिर नंबर को ही अरेंज करूँगा. ठीक है. और इट माइट बी पॉसिबल कि वो नंबर के साथ भी ऐसा हो जाए. ठीक है. तो वो वाला पॉइंट एक ध्यान में रखना. सो देखते हैं यहाँ पर 19 को यहाँ पर लेकर आया, उसके बाद पास्ट शुड बी देयर, लेकिन पास्ट अपनी पोजीशन पे ही है, तो उसने उस स्टेप को स्किप करके फिर नंबर का नंबर ले लिया कि भाई पास्ट तो अपनी जगह पर है, तो अब नंबर का पॉइंट आना चाहिए, तो नंबर को वापस उसने अपनी पोजीशन पे ले आया, है ना. सो दीज 3 आर फिक्स नाउ. इसके बाद आना चाहिए वापस किसका नंबर, यहाँ पर आपका 3 पार्ट अरेंज हो गए. सो अब मेरे को वर्ड को अरेंज करना था, राइट. सो वर्ड ओन, पी से पहले ओ आएगा, है ना. लास्ट स्टेप में भी देखो आप. सो ओन को उठा के वो यहाँ ले आया, विच इज़ ओके. बट लुक एट 32 एंड बैक, राइट. सो इफ ओन इज कमिंग हेयर, सो बैक 32 शुड बी हेयर, राइट. यहाँ पर होना क्या चाहिए था, बिकॉज रिमेनिंग पार्ट शुड बी सेम, राइट. सो बैक 32, 47 फियर होना चाहिए था, बट इट इज़ 32 बैक 47 फियर, दैट्स एन एरर. तो यहाँ पर ये गलती है यहाँ पर. सो दैट दिस शुड बी बैक 32. ठीक है. सो दिस विल कम हेयर एंड दिस विल कम हेयर, एंड रिमेनिंग 47 फियर अपनी जगह पर है. तो अपने आप नंबर देन वर्ड देन नंबर देन वर्ड अरेंज किया. अभी नेक्स्ट पार्ट किसका आएगा, अब मुझे नंबर को अरेंज करना है. सो ऑब्वियसली बात है कि 32 यहाँ पे था, शुड बी हेयर, राइट. एंड इट्स इन द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि मैं नंबर को अरेंज करूँगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो अब नंबर किसका आना चाहिए, 32 का नंबर आना चाहिए. तो ये बैक 32 विल बिकम 32 बैक. आर यू गेटिंग द पॉइंट. यहाँ पर ये एरर जो थी, बैक 32 था यहाँ पर, तो 32 अपनी जगह पे आ जाएगा, और बाकी फिर बैक 47 फिर दैट्स एट ओन प्लेसेस. तो यहाँ तक अब अरेंज हो गया है. इसके बाद अगेन आई नीड टू अरेंज द
अल्फ़ाबेट द वर्ड, तो ये 4 अपनी पोजिशंस में हैं, 5 द नंबर, अब नंबर किसका आएगा, फियर का आएगा। सो फियर इज कमिंग हेयर, तो अपनी बात ठीक होगी, देखो फियर यहाँ पर आ गया एंड बैक 47 अपनी जगह पर है, राइट, वो फिक्स हो गया हमारे पास। एंड द लास्ट स्टेप 47 को अरेंज करना था, 47 यहाँ आ जाएगा और बैक यहाँ पे चला जाएगा। सो दिस इज हाउ इट्स हैपनिंग कि एक एक स्टेप में पहले नंबर देन वर्ड फिर नंबर फिर वर्ड, उसको वो अरेंज कर रहा है, ठीक है, राइट। चलो इस लॉजिक को लगाते हैं अब। सो दैट्स योर इनपुट और मुझे स्टेप 3 निकालना है, ठीक है। स्टेप 3 में अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 में 13 शुड कम हेयर और 13 के बाद ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर, मतलब ये अपनी जगह पर अरेंज रहेंगे। तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको। 13 यहाँ आ गया, अगले स्टेप में 13 के बाद नंबर आएगा वर्ड का डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो अगला नंबर आना चाहिए किसका, अगर आप इसको देखोगे तो दैट्स योर इनपुट, राइट, BLUF, तो रिवर्स ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी लगाओगे तो अपर पहले आएगा, तो अपर शुड कम हेयर, ठीक है। हमेशा इसमें देखते रहो करो। सो इफ़ यू आर क्लियर विद द लॉजिक, अगर आप यहाँ देखोगे ऑप्शंस पे ध्यान देना हमेशा, ये 3 ऑप्शंस तो वैसे भी आउट है ना, क्योंकि यहाँ पर 13 अपर आ ही नहीं रहा। अभी थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, 13 विल कम हेयर, अपर विल कम हेयर, अब नंबर आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो नेक्स्ट नंबर इज 37, शुड कम 37 एंड रेस्ट रिमेन सेम। तो यहाँ पर ये 83 है, तो दैट्स ऑल्सो आउट। एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लो कि 13 अपर 37 आएगा एंड द रिमेनिंग विल रिमेन सेम। सो सेम मतलब मैं अभी तक 13 अपर और 37 अरेंज कर चुका हूँ, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, 83 42 बेंच लवर फ्लोर। सो 83 42 बेंच लवर फ्लोर, मतलब ये बात सही है, बट पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी, राइट। हमने कहाँ पर काफ़ी टाइम सेव किया, जस्ट लुक एट द ऑप्शंस, है ना, ऑप्शन काफ़ी ख़राब दिए हुए थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया यहाँ पर मैंने अभी, तो आपके लिए फ़ायदा हो गया, ठीक है। आई होप यू गेट द लॉजिक, बट इसमें ऑब्वियसली क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक है, तो इसमें टाइम वेस्ट आपका होगा बिकॉज ऑफ दिस स्टेप, राइट। इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई कि ये प्रॉब्लम क्या है, तब तो इस क्वेश्चन को करना था, अदरवाइज लीव इट, राइट, ओके। चलो, and let's talk about the thing we have discussed in the previous video also, that in such kind of group questions, it might be possible that one of the question is at the start and one of the questions after 10-15 questions. That's one of the examples. So isme this data is one question and after some number of questions this data was again given with the other question. मैंने यहाँ पर एक साथ पुट कर दिया है उसको, बट इट वॉज नॉट लाइक दिस इन द एक्चुअल एग्जाम, ठीक है, दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इन सच सिनेरियो ऑलवेज, आई मीन अगर आपको ये दिख जाता है कि इनपुट आउटपुट क्वेश्चन है, इस डेटा को आप सर्कल बांध के चलाना कि ये लॉजिक क्या चल रहा है, सो दैट इफ पॉसिबल अगर आगे कहीं यूज़ किया गया तो मैं इसको रिपीट कर सकूँ, ठीक है, ऑन द रफ पेपर जो आपको मिलेगा, ऑलराइट। तो वो ध्यान रखना है, इसके अंदर लॉजिक सेम है। स्टेप 4 अब गिवन है आपके पास, एंड हाउ मेनी मोर स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट। तो स्टेप 4 अगर है मेरे पास तो उसने मिनिमम 4 तो अरेंज कर लिए होंगे। लुक एट दीज 4, क्या ये अपनी पोजीशंस में हैं, बिल्कुल हैं। फर्स्ट नंबर, देन अल्फा वर्ड, देन नंबर, देन वर्ड। तो स्टेप 5 में ये चारों अपनी जगह पे होंगे, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। इन द रिमेनिंग पार्ट अब नंबर शुड कम हेयर, तो 76 अपनी पोजीशन पे आएगा, ठीक है, एंड रेस्ट 3 विल रिमेन्स सेम। स्टेप 6 में 76 के बाद अब नंबर आना चाहिए वर्ड का, तो वर्ड है आपका, रिवर्स ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी जाओगे तो डी डाउन विल कम फर्स्ट, राइट, डाउन अपनी जगह पे आ गया, ये भी फिक्स हो गया आपके पास। अब फिर से नंबर अरेंज करेंगे हम, और अब नंबर अपनी पोजीशन पे नहीं है तो ये दोनों को स्वैप करना पड़ेगा मुझे। तो स्टेप 7 में 76 आएगा, डाउन आएगा एंड 85 इस पोजीशन में होना चाहिए था। सपोज 85 यहाँ पर होता ऑलरेडी तो मुझे स्टेप की ज़रूरत नहीं थी। सपोज 85 94 होता तो दैट स्टेप इज़ ऑलरेडी काउंटेड आउट, ठीक है, तो एक स्टेप कम हो जाता वहाँ पर, बट यहाँ पर ऑब्वियसली मुझे काउंट करना पड़ेगा, तो 85 आएगा। इसके बाद 85 इज़ फिक्स्ड एंड अगले स्टेप में अब ऑब्वियसली बात है कि 8 स्टेप के अंदर आप फिर से वर्ड को अरेंज करोगे तो ब्रिंग विल कम हेयर एंड 94 विल ऑब्वियसली एट इट्स ओन पोजीशन जो यहाँ पे उसको होना चाहिए। सो दैट्स योर फाइनल अरेंजमेंट, सब कुछ पूरा अरेंज हो जाएगा यहाँ पर।
So how many steps are required more? 4 more steps are required. That's option A. ठीक है. So I hope the logic is clear. Let's move on. Now this was another set, not related to that one. So this was single question. इसमें ग्रुप नहीं था, ये अकेला ही क्वेश्चन था उस सेट के अंदर. A word and a number arranged, सेम लॉजिक पे चल रहा है कुछ ना कुछ. Input is given to you, right? Again look for this. Step 7 is the last step of the arrangement. इसका मतलब वही आपका increasing decreasing order should be there. Look at the last step. The salt now made fell extra cookies butter. Reverse order of dictionary. And numbers are also in decreasing order. ठीक है, सेम लॉजिक चल रहा है. तो इस बार दोनों डिक्रीजिंग है, बस ये फ़र्क है. सो क्या हो रहा होगा यहाँ पर स्टेप 1 में चेक करते हैं क्या हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल बटर कम हेयर एंड 19 ऑल्सो कम हेयर. तो यहाँ पर वो दो काम कर रहा होगा, वर्ड एज वेल एज नंबर दोनों एक साथ अरेंज कर रहा है. ठीक है, तो एक स्टेप में दो काम चल रहा है. सो बटर मतलब सबसे डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहला वर्ड पहले आया एंड देन स्मॉलेस्ट नंबर कम हेयर. उसके बाद अगर आप देखो बाकी सब सेम है अपनी जगह पर, ये दोनों इधर शिफ्ट हो गए, राइट. एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक मतलब देखो यहाँ पर इसको फाइनली लास्ट में जाना चाहिए था. ठीक है, तो इट्स लाइक दैट कि वो पुट कर रहा है अपनी जगह पर पोजीशन एट द स्टार्ट, बट इसको इधर पुश करते जा रहा है. सो इट कीप्स पुशिंग इट टू द राइट हैंड साइड. सो पहले रिवर्स ऑर्डर में आप कर रहे हो, इधर से अरेंज करना शुरू कर रहे हो. सो इन दोनों को उठा के यहाँ लेकर आए एंड देन वॉट टू नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट शुड कम हेयर उसको स्टार्टिंग में डाल दिया. सो ऑब्वियसली बटर से पहले कुकीज़ आएगा एंड 19 से पहले 23 आएगा और इन दोनों को इधर पुश कर दिया. तो ऐसे ही अगर आप देखो तो ये 4 इधर पुश हो गए वापस से, और इसके पहले जो आना चाहिए एक्स्ट्रा एंड 37 दैट्स पुश हेयर एंड सिमिलरली एंड सो फोर्थ. तो ये चारों इधर फिक्स, तो इट कीप्स पुशिंग इट टू द राइट हैंड साइड, और जो उसके अरेंजमेंट में आना चाहिए दैट इज टू द लेफ्ट हैंड साइड, और फाइनली पूरा उसने यहाँ शिफ्ट कर दिया होगा. ऑल दो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एग्जाम के अंदर इतना सोचने की ज़रूरत नहीं थी. अगर इट इज़ क्लियर क्वेश्चन पर अगर आप देखो, क्वेश्चन था इफ स्टेप 3 इज गिवन टू यू, राइट, व्हाट इज द इनपुट. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इफ इट इज़ अ पोजिशन बेस्ड क्वेश्चन कि आपको पता है कि पहले 2 स्वैप किए, लास्ट 2 स्वैप किए, वॉट एवर इट इज़, सो यू कैन गो बैक, आप पीछे जा सकते हो क्योंकि आपको पता है कि ये कहाँ से आया होगा, राइट. सो रिवर्स जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, दैट्स अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन इनपुट आउटपुट. ठीक है, इफ इट इज़ अ पोजिशन बेस्ड क्वेश्चन देन यू कैन गो रिवर्स. इफ इट इज़ एन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी और नंबर्स यू कैन नॉट गो बैक, बिकॉज थिंक ऑन दिस कि बटर 19 अपनी जगह पर आना चाहिए स्टेप 1 में, बट बिफोर दिस स्टेप वेयर वॉज 19, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. वो 19 कहीं भी होता उसको यहाँ पर आ ही जाना चाहिए था, बटर कहीं पर भी होता यहाँ पर आ जाना चाहिए था. सो बटर अगर इसकी जगह पर यहाँ भी होता, 19 अगर यहाँ भी होता, देन ऑल्सो इन स्टेप 1 यही बनता. सो कैन आई से कि इफ स्टेप 1 इज दिस, व्हाट इज द इनपुट? नो, इट कुड बी एनीथिंग. आर यू गेटिंग द पॉइंट? वो कुछ भी हो सकता था. तो पीछे आप जा ही नहीं सकते उस सिचुएशन में. तो अगर स्टेप 3 गिवन है, व्हाट इज द इनपुट कैन नॉट बी डिटरमाइंड. क्लियर कट, कोई फाइट ही नहीं इसके अंदर. ठीक है, इसको भी शॉर्टकट की तरह यूज़ करना आप लोग. गॉट इट? चलिए लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट इज एन इजी क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शंस. बेसिक उल्टा समझते हैं. इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन सो फोर्थ, व्हाट विल वेस्ट बिकम? तो इट्स रोटेशन ऑफ द नॉर्मल डायरेक्शन, राइट. रोटेशन कितने डिग्रीज का है वो सोचना पड़ता है. जनरली इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 45 डिग्रीज. 45 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 135 डिग्रीज टू द राइट हैंड साइड और द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बोथ थिंग्स कैन हैपन. नॉर्मली एक ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी होती है, 2 गिवन है तो जस्ट टू मेक श्योर कि वो सही बात बन रही है. सो नॉर्मल डायरेक्शन अगर आप देखो, सो दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, north east, south east and so on and so forth. Now it is saying south east become north, south east becomes north. तो अगर ये north बन गया है, so we are rotating this to 135 degrees in the clockwise direction.
right? So what will happen? It will look like this. Okay, तो north यहाँ आ जाएगा, तो south will come here, and east will come here, and west will come here. Look at this also. Northeast become west, northeast becomes west. सही हो गई बात. What will west become? West क्या बन जाएगा? तो west ये था, अभी ये क्या बन जाएगा? Southeast. That's option A. अगेन यहाँ पर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो जाती है. इट इज गिवन टू यू दैट व्हाट विल साउथ वेस्ट बिकम. वेस्ट क्या बन जाएगा? तो आपका आंसर है साउथ ईस्ट. और इट माइट आस्क यू व्हाट विच डायरेक्शन विल बिकम वेस्ट. कौन सी डायरेक्शन वेस्ट बन जाएगी? सो इन दैट केस आंसर वुड हैव बीन नॉर्थ ईस्ट. क्या चीज नॉर्थ, कौन सी डायरेक्शन वेस्ट बन जाएगी? तो नॉर्थ ईस्ट विल बिकम वेस्ट, तो आंसर होता नॉर्थ ईस्ट. वेस्ट क्या बन जाएगा? देन योर आंसर इज साउथ ईस्ट. आई होप द लैंग्वेज इज क्लियर. यहाँ पे ध्यान देना कि क्या गिवन है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, चलो ये इजी था. नेक्स्ट 16, 17 ये भी स्कैटर्ड थे, राइट? दोनों सेम लॉजिक के ऊपर है, बट ये एक साथ नहीं थे, अगेन कुछ गैप में थे, राइट? एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ दैट स्लॉट. सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, लैंग्वेज वाइज, क्वेश्चन वाइज, मतलब काफ़ी फाइट है इसके अंदर. लुक एट द डायरेक्शंस. क्या बोल रहा है? P sat to Q. You are as old as R was when I was twice as old as S and will be as old as T was when he was as old as R is now. And same statements with Q to P. मतलब इतना कन्फ्यूज़न. तुम उतने ओल्ड थे जब मैं इतना था, जब मैं इतना था, या उतना हो जाऊंगा. इट्स टू मच कन्फ्यूजिंग. तो दिस क्वेश्चन शुड बी बेटर लेफ्ट, है ना? और मतलब सब कुछ कर लोगे तभी और टाइम बच जाएगा, देन यू शुड अटेम्प्ट इट. अदरवाइज ये करने वाला नहीं था. अभी तो हम करेंगे, लेट्स ली क्या करते हैं. राइट, सो इसमें ये पॉइंट देखो कि डू आई नीड टू फाइंड आउट कि किसकी एज क्या है? नो, क्वेश्चन इज सिंपली हु इज़ द यंगेस्ट एंड हु इज़ द एल्डेस्ट. तो मुझे केवल इनको अरेंज करना है लीनियर या फिर वर्टिकल फॉर्म में कि कौन किससे बड़ा है. ठीक है, तो मैं केवल उसी पॉइंट पे ध्यान दूंगा कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, दैट्स इट. ठीक है, सो P सेट टू Q. P ने Q से कहा U मीन्स Q. Q इज एज ओल्ड एज R वाज. Q उतना है जितना R था कभी. R था मतलब R की एज पहले Q के बराबर रही होगी, अभी R की एज बढ़ गई होगी. तो कहना इससे Q की एज छोटी है R से. गेटिंग इट? सो फ्रॉम दिस पार्ट Q छोटा है R से. You are as old as R was. When I मतलब P, when I was twice as old as S, जब मैं S से डबल एज का था. तो P की एज S से डबल थी किसी टाइम पर, दैट मीन्स P की एज S से बड़ी है ना? P S से बड़ा है. एंड विल बी एज ओल्ड एज T was. कौन? U. वापस Q की बात चल रही है यहाँ पर. यहाँ तक स्टेटमेंट खत्म हो गया, एंड का मतलब नया स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है. सो U विल बी, दैट मीन्स Q विल बी एज ओल्ड एज T was. Q फ्यूचर में उतना होगा जब T था कभी. तो अगेन Q की एज छोटी है क्योंकि वो फ्यूचर में T के बराबर होगा जब T कभी था. तो Q T से भी छोटा है. गॉट इट? When he was, he कौन? T. He was as old as R is now. जब T था जितना R अभी है, तो T था उतना जितना R अभी है. तो अगेन T की एज बढ़ गई होगी R से, तो T R से भी बड़ा है. गॉट इट? सॉरी. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट से मुझे ये पता लगा. ठीक है, इसको मैं क्लब कर सकता हूँ कि कैसे कैसे हो जाएगा. PSQRT ये कुछ दिया हुआ है, तो P और S तो अलग हो गए. फ्रॉम दिस आई फाइंड आउट दैट P बड़ा है S से, एंड Q छोटा है R से, और R छोटा है T से, और T बड़ा है Q से. T बड़ा तो Q से तो ही जाएगा. तो Q इज लेस देन R, R इज लेस देन T, एंड Q लेस देन T वो अपने आप इसके अंदर आ गया, तो इसका ज़रूरत नहीं पड़ा. सो ये दो इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से मिल जाती है.
ठीक है, इसको हम दोनों से ले सकते हैं, टी मोर देन आर मोर देन क्यू ऑल्सो। देन सेकेंड स्टेटमेंट, क्यू सेड टू पी, क्यू ने पी से कहा, यू मतलब पी, यू मे बी ओल्डर देन यू, तुम यू से बड़े हो, तो पी यू से बड़ा है। बट वी इज एज ओल्ड एज आई वॉज, वी इज वी अभी उतना बड़ा है जितना मैं था, जितना मैं था, है ना, तो मतलब मैं आगे बढ़ गया हूँ। कौन? आई मतलब क्यू, तो वी छोटा है, सॉरी क्यू मतलब, हाँ वी छोटा है क्यू से, है ना, सो आई कैन से क्यू बड़ा है वी से, ठीक है। वेन ही वॉज एज ओल्ड एज आर इज नाउ, सॉरी यहाँ उल्टा पढ़ लिया मैंने, ये था वेन ही वॉज एज ओल्ड एज वी इज। अब ये स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, वी इज एज ओल्ड एज आई वॉज वेन यू मतलब पी, वी अभी उतना बड़ा है जितना मैं था, जब मैं था, राइट। कब? जब P इज एज ओल्ड एज V इज, जब P V के बराबर था, जब B V के बराबर था तब V मेरे बराबर था। लुक एट दिस, V इज एज ओल्ड एज I वॉज व्हेन P इज एज ओल्ड एज V। तो जब P V के बराबर था तो V किसके बराबर था? Q के बराबर था। तो कैन आई से फ्रॉम दिस कि P और Q सेम एज के थे, करेक्ट। एंड S विल बी एज ओल्ड एज U वॉज, और S फ्यूचर में उतना बड़ा होगा जितना U था कभी। तो S फ्यूचर में U के बराबर होगा, मतलब S की एज छोटी होगी U से। सॉरी, हाँ सही बोल रहा हूँ, है ना। S विल बी एज ओल्ड एज U वॉज व्हेन U इज एज ओल्ड एज V। जब U इज एज ओल्ड एज V इज होना चाहिए था यहाँ पर, ये लैंग्वेज का थोड़ा सा फाइट है। मतलब यहाँ से मुझे पता लगा कि V भी U से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है? यहाँ से मुझे मिलता है P बराबर Q, और उसके बाद मैं P का यूज़ कर रहा हूँ, तो Q इज इक्वल टू P कर देता हूँ। Q इज इक्वल टू P बड़ा है U से, बड़ा है V से, और U बड़ा है S से। V भी U से बड़ा है, तो V U से बड़ा है, तो मैं इसको लूँगा मोर देन V मोर देन U एंड U मोर देन S, ठीक है, गॉट इट। अब इसको यहाँ कंबाइन कर देते हैं। P इज़ मोर देन S, वो ऑलरेडी काउंटेड है यहाँ पर, कोई फाइट नहीं है, तो ये मेरा हो गया। एंड Q से R बड़ा है और R से T बड़ा है, तो वो इधर आ जाएगा। सो कंबाइन करके क्या मिलेगा? T इज़ मोर देन R मोर देन Q एंड देन इज इक्वल टू P मोर देन V मोर देन U मोर देन S। तो who is the youngest? S. Next question, who is the eldest? That is T. But quite difficult question है ना, तो समझ में आ गया बात की एग्जाम में तो छोड़ने वाला है। गॉट इट जी। चलो 17 डन, 18 पर आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, और इन सच सिनेरियो मुझे केवल कॉमन देखना होता है ना, कॉमन कोड विद द कॉमन वर्ड, दैट्स इट। सो लुक एट दिस कि क्या क्या है यहाँ पे। 1 मेरे को सबसे ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर। 1 इज़ यूज ट्वाइस, यहाँ पर 1 को 2 बार यूज़ किया हुआ, तो विच वर्ड इज़ यूज ट्वाइस? द। कैन आई डेफिनेटली से 1 इज इक्वल टू द, है ना। अब ये वाला काम मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ, बट एग्जाम में दिस इज़ डिफ़िकल्ट, बिकॉज ये पूरा लिखोगे तो क्या करोगे, कट करोगे, कैसे करोगे, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है यहाँ पर थोड़ा सा। सो आइडली होना चाहिए कि उनको कट करते जाओ। सो 1 का कोड मुझे मिल गया है, सो 1 को आउट कर दो आप सब जगह से, और उसका जो कोड है उसको भी आउट कर दो, तो काम आसान हो जाता है मेरे पास कि मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ रिमेनिंग पार्ट के अंदर, ठीक है। व्हाट एल्स? 6 6 6, इन तीनों में 6 है, और 8 इन दोनों में ही है, 2 इन दोनों में ही है। तो लुक फॉर दिस 6 6 6, इन तीनों में कुछ कॉमन होना चाहिए। तो इन तीनों में अगर आप देखो तो सबसे छोटे से देखता हूँ, कैट वाज ब्राउन,
ब्राउन यहाँ नहीं है, कैट है और यहाँ भी कैट है, तो इन तीनों में कैट कॉमन है और 6 कॉमन है, तो 6 इज इक्वल टू कैट। ये भी मुझे मिल गया। नाउ फर्स्ट एंड थर्ड में 2 कॉमन था एंड ब्राउन कॉमन था, तो 2 इज इक्वल टू ब्राउन। तो 7 अपने आप वाज हो जाएगा। इसके भी चांसेस हैं कि ग्रुप क्वेश्चन हो और स्कैटर्ड करके दिया हुआ हो, विच आई थिंक वाज देयर। तो 7 इज इक्वल टू वाज, और कहीं 7 तो नहीं है, नहीं है। 3 4 यहाँ है मेरे पास, 3 ऊपर भी है, सो डॉग रैन और डॉग मेरे पास है यहाँ पर, तो 3 कॉमन था, राइट। तो 3 इज इक्वल टू डॉग। 3 3 डॉग डॉग। Now I am only left with 8 and frightened, और frightened का ही कोड पूछा था, तो frightened is equal to 8। इजी। तो ये तो कफरने वाला क्वेश्चन था, और इसी में पूछा था कि ब्राउन क्या है। अगेन ये स्कैटर्ड क्वेश्चन था, तो ब्राउन का कोड मैं पहले निकाल चुका हूं, विच इज 2। इस तरह क्वेश्चन को हमेशा नोट करके रखा करो कि दिस डेटा कैन बी यूज्ड अगेन, ठीक है। 19 डन। 20 पर आते हैं। राहुल put his timepiece on table in such a way that 6 p.m. our hand points to north. In which direction the minute hand will point at 9:15? अगेन वो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, रोटेशन वाला, ठीक है। तो 6 PM पर नॉर्थ को शो कर रही है आवर हैंड। हम नॉर्मल क्लॉक बनाते हैं, तो 6 PM पर इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। एंड दिस इज नॉर्थ, तो हम रोटेट कर देते हैं बेसिकली अपने सिस्टम को, राइट, कि ये आपका नॉर्थ है। सो दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। तो एट 9:15 आवर मिनट हैंड कहाँ पर होगी? सो आवर 9:15 पर ऐसा बन रहा होगा, तो मिनट हैंड किस डायरेक्शन में है? वेस्ट डायरेक्शन में है। दैट्स ऑप्शन डी। दिस इज इजी, ये डेफिनेटली करने वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। रोटेशन का ध्यान रखना बस, दैट्स इट। 20 हो गया। 21 अगेन एरर, बड़ी एरर थी ये, एक्चुअली काफ़ी बड़ी एरर थी। इन अ डांस अकेडमी देयर वर 240 डांसर्स, ऑल डांसर्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 120। वो हाउ इज इट पॉसिबल? तो हुआ ये होगा कि कहीं से क्वेश्चन उठा के डेटा चेंज किया होगा, राइट, और वो 240 किया बट यहाँ पे नहीं किया, या फिर शायद 120 यहाँ पे था और ये था। सो इस क्वेश्चन में मुझे ये नहीं पता है आई शुड वर्क फॉर 240 और 120, कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं है। हो सकता है एरर यहाँ पे, हो सकता है एरर यहाँ पे हो, ठीक है। तो आपको दोनों तरीके से करना पड़ेगा क्वेश्चन, पहले 240 को लेकर सॉल्व करो, फिर 120 को लेकर सॉल्व करो। क्वेश्चन लंबा है थोड़ा सा, राइट। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी छोड़ने वाला था, मुझे भी 2 बार करना पड़ा, एक बार 240 से और एक बार 120 से, और आंसर काफ़ी ही क्लोज आए, ठीक है। बट फाइनली जो मुझे ऑप्शन मिला वो 240 से ही मिला। तो एक्चुअली एरर यहाँ पे थी, इट शुड बी 240, राइट। देखते हैं करना कैसे। ऑल इवन नंबर डांसर्स लर्न सालसा, dancers with multiple of 5 learn ballet, and multiple of 7 learn hop. How many learn none of these 3 dance? अभी डांस से मुझे मतलब नहीं है, आई बेसिकली आई नीड टू फाइंड आउट मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 7, एंड फिर सेट थ्योरी का क्वेश्चन लॉजिक लगेगा दैट हाउ मेनी आर मल्टीपल ऑफ 2 और 5 और 7, बट मुझे निकालना क्या है? किसी का भी ना हो, नाइदर ऑफ नन ऑफ दीज 3 बेसिकली, ना तो 2 का हो, ना 5 का हो, ना 7 का, तो टोटल में से माइनस कर देंगे वो तो। सो पहले और का लॉजिक लगाएंगे, दिस और दिस और दिस, ठीक है। फ्रॉम 1 to any number, if you need to find out the number of multiples of any number, you just need to divide it by that. तो अगर मुझे मल्टीपल ऑफ 2 निकालना है, आई सिंपली डिवाइड 240 by 2 and take the quotient part, forget the remainder or point system. सो 120 240 अपॉन 2 करेंगे तो 120 आ जाएगा। मल्टीपल ऑफ 5, 240 by 5, दैट इज 48। मल्टीपल ऑफ 7, दैट इज 240 by
7 करेंगे तो 7 इंटू 3 21 बच गया 30, 7 इंटू 4 28, 34 टाइम्स जाएगा. देन आई विल टेक ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस 2 का इंटरसेक्शन. सो 10 के मल्टीपल, इसके मल्टीपल और इसके मल्टीपल, दीज आर काउंटेड ट्वाइस हेयर, है ना, जो मुझे हटाने पड़ेंगे, क्योंकि जब मैंने 2 के मल्टीपल फाइंड आउट किए तो उसमें 5 के मल्टीपल भी आ गए होंगे, एंड सिमिलरली यहाँ पर 2 के मल्टीपल भी आ गए होंगे. तो आई नीड टू काउंट इट ओनली वंस, तो मुझे एक एक बार हटाना पड़ेगा. सो आई ट्राई टू फाइंड आउट मल्टीपल ऑफ 2 and 5, दैट इज 10, दैट इज 240 by 10, 24. आप ये भी कर सकते हो, आप 5 वाले को 2 से डिवाइड कर दो शॉर्ट फॉर्म में. देन मल्टीपल ऑफ 2 and 7, दैट इज 14. तो 7 वाले को हाफ कर देता हूँ, दैट इज 34 by 2, 17 आ जाएगा. सिमिलरली मल्टीपल ऑफ 5 and 7, दैट इज 35. उसके लिए इसको 5 से डिवाइड कर दो, 34 by 5 गिव यू 6. ये शॉर्टकट बन गया आपका. उसके बाद मल्टीपल ऑफ ऑल दीज थिंग्स, मतलब 2, 5 and 7 तीनों का मल्टीपल, दैट इज 40 का मल्टीपल. सो 35 इंटू 2 70 का मल्टीपल चाहिए, तो इसको हाफ कर दो. जस्ट ये 35 का मल्टीपल है, हाफ कर देंगे तो 70 का मल्टीपल आ जाएगा. तो 60 by 2, दैट इज 3. सो दीज 3 विल बी एडेड, these 3 will be subtracted and these 3 will be added, this will be added. अभी शॉर्टकट में करना चाहिए, इनको पहले ऐड कर लो, है ना. तो ये अगर आप ऐड करोगे तो 23 प्लस 24, ये आपका बन गया 47. 47 मैं यहाँ से हटा दूंगा, इजी काम है ना, क्यों टेंशन लेने की, पहले ऐड करो फिर ये करो. तो 47 यहाँ से जाएगा तो 1 बचेगा मेरे पास. सो 1 फ्रॉम दिस, 3, 4 एंड 34, 38 एंड 120. बेसिकली 120 बचा, 34 बचा, 1 बचा और 3 बचा, तो 158 हो गया. 158 नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ आइदर 2 और 5 और 7. इनमें से किसी एक का है, मुझे किसी का भी नहीं चाहिए. तो सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम 240 गिव्स यू 2 and 8. That's the option. Now if you have solved it using 120, answer would have been 41, which is quite close. 42 भी ऑप्शन में है, और वहाँ पर फिर एक डाउट ही आ जाएगा कि क्या मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं कही इन कैलकुलेशन के अंदर. दैट्स वाई दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ दिस एरर. बेटर शुड बी लेफ्ट, नहीं करना था ये क्वेश्चन का. ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज. दिस स्टैंडर्ड क्वेश्चन कुड बी क्वाइट ट्रिकी, है ना, बहुत ईजी भी हो सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट भी हो सकते हैं. क्लिक हो रहा है विद इन 1 minute अटैम्प्ट करना, नहीं हो रहा है तो सेकेंड राउंड के लिए छोड़ सकते हो. सो जनरली होता क्या है कि आप अपोजिट नंबर्स पे ही डील करना, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वहीं पर होती है कि इन दोनों को ऐड करके कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया हो, मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया हो, ऐड कर दिया हो मल्टीप्लाई करके, कुड बी एनीथिंग. ठीक है, और छोटे बड़े नंबर पे सॉल्व करोगे तो शायद थोड़ा आसान हो जाता है, तो उससे चीज़ें पकड़नी ईजी होती हैं. सो दिस प्लस दिस अगर मैं करता हूँ, बेसिक लॉजिक लगाता हूँ, दिस प्लस दिस इज 30 एंड दिस प्लस दिस इज 14, और उनका डिफरेंस 16 है, तो बात तो बन रही है. हेयर इट इज़ 15 एंड 7, डिफरेंस इज 8. दैट्स इट. सो बेसिकली कर क्या रहा है, 4 + 11 कर रहा है, माइनस 5 + 2 कर रहा है, एंड वो आपका 15 - 7, दैट इज 8 आ रहा है, विच इज देयर. सेम थिंग हेयर, सेम थिंग विल बी हेयर. सो 15 + 8 इज 23, minus 9 gives you 14. That's option B. ठीक है, दिस वॉज ईजी, तो ये भी करने वाला बनता था. ब्लड रिलेशंस, वी हैव डिस्कस द ट्रिक इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो. हमने वहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ा था इसका, तो मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, है ना. पढ़ना है तो वो वीडियो दोबारा पढ़ लो. ठीक है, पार्ट 1. ए इज़ बी सिस्टर, फैमिली ट्री बनाते हैं प्लस माइनस सिंगल एरो डबल एरो की हेल्प से. सो ए इज़ बी सिस्टर, ए इज़ बीज सिस्टर, सिस्टर के लिए मैं माइनस यूज़ कर रहा हूँ, कोई जेंडर वाइज नहीं हूँ, टेंशन मत लेना. ठीक है, बी का जेंडर मुझे अभी नहीं पता है क्या है. सी इज़ बीज मदर, अपर जनरेशन में आएगा. डी इज़ सीज फादर, इसके भी ऊपर. ई इज़ डीज मदर, इसके भी ऊपर. हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी, ए डी का क्या है, तो डी की डॉटर है, इसका जेंडर तो मुझे नहीं पता है. सो डी की डॉटर मतलब ग्रैंड डॉटर हो गई. दैट्स ऑप्शन, सॉरी
ग्रैंड डॉटर इज ए। ठीक है, दिस वॉज इजी, है ना। अब इसमें ये पूछता कि हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, देन आंसर होता कैन एंड नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि बी का जेंडर मुझे नहीं पता है, तो बी कुड बी ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर बोथ। ठीक है, और एक और हमने बात की थी, यहाँ पर तो एबीसीडी दिया हुआ है, बट नाम से जेंडर का आइडेंटिफाई मत करना। सपोज बी का नाम होता बलराम, राइट, बल्लू, कुछ भी, तो ज़रूरी नहीं कि वो लड़का होगा। ठीक है, बलराम कैन बी फीमेल ऑल्सो। ठीक है जी, रैंकिंग क्वेश्चन पे आते हैं। राम इज, इस तरह क्वेश्चन में प्रीवियस क्लास में भी किया था, उसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, तो पढ़ना है तो उसको कर लेना एक बार। राम इज 7 रैंक अहेड ऑफ श्याम इन ए क्लास ऑफ 39। 7 रैंक आगे है, मतलब 7 रैंक उसकी कम होगी, तो मतलब लेट से श्याम की रैंक अगर 20 है एंड राम इज 7 रैंक अहेड, तो 7 रैंक कम हुई उसकी, तो माइनस करूँगा। 20 अगर है उसकी रैंक, तो 20 माइनस 7 करूँगा, 13 रैंक हो जाएगी। ठीक है, इफ़ श्याम रैंक इज 17 फ्रॉम द लास्ट, तो 39 पीपल हैं, श्याम की रैंक लास्ट से 17 है, तो स्टार्टिंग से क्या होगी। आई हैव डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट कि टोटल नंबर ऑफ पीपल 39 माइनस दिस प्लस 1 करते हैं, -17 + 1। ठीक है, दैट इज 40 माइनस 17 इज 23rd रैंक हो गई इधर से। राइट, क्यों करते हैं ऐसा, बिकॉज इसकी रैंक अगर 17th है, तो आफ्टर श्याम 16 पीपल और होंगे, तो एक्चुअली मेरे को 39 - 16 करना था, इवेंचुअली मैंने +1 कर दिया उसको। तो जब भी ऐसा गिवन होगा, बिकॉज इसको मुझे 2 बार काउंट करना पड़ेगा, सो आई नीड टू ऐड 1 इन दिस केस। और क्योंकि राम उससे 7 रैंक आगे है मतलब पीछे है, तो 23 - 7 करूँगा, सो दैट गिव्स यू 16th रैंक, दैट्स ऑप्शन ए। ये अहेड पे ध्यान देना, वैसे ऑप्शन इतने बढ़िया थे कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी, क्योंकि यहाँ पे एक डाउट हो सकता था कि प्लस करना है कि माइनस करना है। ठीक है, तो लुक फॉर दैट। 25 इन अ सर्टेन कोडिंग सिस्टम, दिस अगेन कॉमन वाला पार्ट है ये, तो वही लॉजिक लगाते हैं जो हमने उस नंबर्स पे लगाया था। द कैट इज़ ब्यूटीफुल, द डॉग इज़ ब्राउन एंड द डॉग हैज़ द कैट। कॉमन देखते हैं, द कैट इज़ ब्यूटीफुल, द डॉग, द और इज़ कॉमन है, तो इसमें तो 2 पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी। द डॉग हैज़ द कैट, यहाँ पे देखो ये हिंट मिला मुझे, द 2 बार यूज़ हो रहा है, तो विच इज़ यूज ट्वाइस, PUS यूज ट्वाइस, तो द का कोड हो गया PUS, तो कट कर देते हैं। द PUS, द PUS। ठीक है, अभी डॉग हैज़ एंड डॉग इज़, तो यहाँ पे डॉग कॉमन है, राइट। और कोडिंग में अगर आप देखोगे तो TNH DIM STD, तो DIM कॉमन है, सो दैट मीन्स डॉग का कोड हो गया DIM, कट कर दो। राइट, अभी कैट कॉमन है फर्स्ट और लास्ट में, हैज़ है नहीं, और इन के अंदर ब्रो कॉमन है, तो कैट इज ब्रो। ठीक है, और मुझे हैज़ का कोड निकालना था, तो हैज़ का कोड एक ही बचा आपके पास, CUS, तो हैज़ इज इक्वल टू CUS, दैट्स योर आंसर। इजी क्वेश्चन होते हैं, डेफिनेटली करने वाले बनते हैं ये। गॉट इट जी, 25 हो गया। 26 पर आते हैं, वो सिंगल क्वेश्चन ही था। ये अगेन डायरेक्शन वाला होता है, थोड़ा ध्यान रखना होता है इसके अंदर, इवनिंग बोल रहा है, मॉर्निंग बोल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, लुक एट दिस, 1 इवनिंग, इवनिंग का मतलब डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, सन विल इन द वेस्ट, है ना, राइज नहीं, क्यों बोल रहा हूँ मैं। तो कोई भी बंदा खड़ा हो, उसकी शैडो बनेगी इस तरफ, है ना। अभी किसके लेफ्ट में किसके राइट में मुझे नहीं पता। 2 फ्रेंड्स संजू एंड मंजू आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, तो मतलब इसका फेस ऐसे है, इसका फेस ऐसे है। अभी इसका ध्यान दोगे तो इसकी शैडो इसके राइट में बन रही है, बट इसकी शैडो इसके लेफ्ट में बन रही है ना। इधर फेस है तो लेफ्ट हो गया है।
बस मुझे ये देखना पड़ेगा इसमें कौन मंजू कौन संजू है। मंजू शेडो वर एग्जैक्टली टू हर लेफ्ट साइड, मंजू की शेडो उसके लेफ्ट में बन रही है, तो इसमें इसी पर्सन के लेफ्ट में बन रही है ना, दिस इज द पर्सन, उसके लेफ्ट में वी हैव अ शेडो, सो दिस इज डेफिनेटली मंजू, तो दिस इज संजू, तो वेयर संजू इज फेसिंग, आंसर इज नॉर्थ। ठीक है, दिस इज नॉर्थ। करेक्ट, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बट ये थोड़ा सा घुमा के देखोगे तो आइडिया मिल जाएगा आपको क्या क्या बन रहा है। इवनिंग में, सॉरी मॉर्निंग में जस्ट उल्टा हो जाता है, मॉर्निंग में शेडो इधर बन जाएगी, है ना, बस ये फर्क होगा। वही लेफ्ट राइट का ध्यान रखना, क्वेश्चन में भी डन। गॉट इट जी। चलिए इतना ही करते हैं आज। सो नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन थर्ड पार्ट में करेंगे इन द अपकमिंग वीडियो। ऑलराइट, चलो सी यू अगेन, बाय बाय।